So I hope that you are all healthy and fit, staying at your homes during the COVID-19. And I hope that the university will extend the holidays until the 28th April, which was notified by the government last day. So let's hope कि 28 के बाद सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएं तो फिर फिज़िकल मोड में क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी। बट बिफोर दैट जहाँ तक शेड्यूल की बात है तो until 28 April we must go in the online, we must continue in the online mode. So let's wait for another 4 to 5 minutes, then we will start our presentation. सर मीट्स ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस? No decision till now. हमें खुद भी यूनिवर्सिटी के एडमिन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो until फर्दर ऑर्डर्स आप लोगों के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो कंटिन्यू होंगी। सर आपको क्या लगता है? आई होप के मुझे जो लग रहा है कि ये ऑनलाइन मोड में क्लास में सॉरी मिड टर्म ले लेंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म टिल नाउ। सर ये इंस्टीट्यूट से कंफर्म है ये 28 तक बंद होने का? तो अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन कर ही लिया है तो आई होप के अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स ही यूनिवर्सिटी फॉलो अप करेंगे। ऑनलाइन ना लें, मिड्स फिजिकली लें, ऑनलाइन में मजा नहीं आता। ये तो हमारा बेसिकली इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है ना, ये तो आपके जो मतलब इंस्टीट्यूट वाले जो भी डिसीजन करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली उस प्लान को फॉलो करेंगे। So class, let's start our presentation. So I hope that you are all seeing the screen. I am sharing the screen right now. अच्छा, आप में से कोई एक स्टूडेंट हुआ वो CR हो या जो कोई भी हो तो लेट रिस्पॉन्ड टू मी डायरेक्टली so that I can understand that you are on the other end, you are listening on the other end. So let me start the lab. But before moving on towards the lab, let me clarify some things. Okay, there are two aspects of using the power flow analysis. वो दो aspects कौन से हैं? So if I want to apply the methods of power flow analysis, so first of all I must know the derivation of the various formulas which should not be done in the lab, because the derivation as well as the other aspects of the methods that must be clarified in the theory section. तो लैब सेक्शन में हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज आपके पास गास सीडल एंड न्यूटन राप्सन, ये दो मेथड्स आप आज की लैब में कवर करेंगे बाय यूजिंग द पावर वॉल सिमुलेटर, right? But we will not move towards the derivation of these formulas. We will only concern with the application of these two methods. Is that clear?
Yes, is that clear? सर आपकी आवाज बाबा कम आ रही है. Acha. Now is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. So Okay. I was telling that we must cover the applications of Gauss-Seidel and Newton-Raphson methods by using the Power-Wall simulator. We are not concerned with the derivation of formulas of these two methods because these formulas will be derived in the theory lectures. So that would become lengthy if we first move towards the derivation and then move towards the application. So the basic aim of this lab would be the application of the Gauss-Seidel and Newton-Raphson मेथड्स. अगर किसी स्टूडेंट्स को फार्मूले में कोई कंफ्यूजन है या मतलब डेरिवेशन एट्सेट्रा तो वो इस तरह करें कि फ़िलहाल उसको जस्ट नोट डाउन करें एंड देन जब आपकी थ्योरी में ये चीज़ें कवर हो रही होंगी तो उसी टाइम फिर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दैट क्वेरीज. लेकिन चूँकि आप अभी फ़िलहाल चूँकि गॉस-सीडल पढ़ रहे हैं और न्यूटन रैप्सन आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह. So let's start with the presentation. So the first method, that is the Gauss-Seidel power flow method. So नजर आ रहा है सारों को? Yes, sir. Okay. So the first method is the Gauss-Seidel power flow. तो जिस तरह आपने कुछ देर पहले थ्योरी की क्लास में पढ़ा होगा कि हम इससे जो वी आई फाइंड आउट डिराइव करते हैं, सही है. सो व्हेन वी डिराइव द ith term of voltage, this ith vi stands for the ith voltage of the ith bus bar, सही है. तो आप किसी भी बस बार के ऊपर जो है तो वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला. एंड वाई इज बेसिकली द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ बस एडमिटेंस मैट्रिक्स. लेट्स सपोज मैं V2 के ऊपर वोल्टेज फाइंड आउट कर रहा हूँ, सही है. सो V2 मस्ट बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई Y22 which is the Y22 element of bus admittance matrix. And then there is a summation k from 1 up to n and then yik and then vk, सही है. should I proceed? सर ये फार्मूले कहाँ से आए? Yes, sir. अच्छा, आप लोगों ने थ्योरी की क्लास में ये फार्मूले डिराइव नहीं किए सर शायद ने? सर किए हुए हैं. अच्छा, सही. सो इस केस में ये है कि बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले तो अपेरेंट पावर से शुरू किया गया है, सही है. अपेरेंट पावर ऑफ द ith बस इज इक्वल टू बी आई इंटू आई कंजुगेट, सही है. बट द आई इज इक्वल टू द समेशन ऑफ वाई आई के इंटू वी के, सही है. जिस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि let me show you the screen. So I is equal to y bus multiplied by voltage. So if I consider for n number of currents per n number of bus bar, so it will consist of I is equal to I multiplied by VI. अब समझ में आ रही है? यस सर. So moving on towards the presentation. Okay, so we can write our current in terms of bus admittance matrix and voltage.
सही है. And then there is also conjugate. So this conjugate will apply both to yik as well as the vk. And then what happens that they have taken the conjugate on both sides because we are concerned with our voltage, not with our conjugate of voltage. So taking conjugate on both sides, these two conjugates will get cancelled according to the property of conjugates. So SI conjugate is equal to VI conjugate into II. And then the II can be expanded further by using this term. So there is no conjugate over II, and then this VI gets out of this summation sign. So by dividing this term with SI, we get the summation of YIK into VK. Now, what happens there that they have taken out the ith term out of this summation sign. सही है? So basically, what I can do with this term that this term is basically expanded by using the summation property, which is such that y I k vk must be equal to k is from 1 up to n. So this term can be written as y I1 v1 plus y I2 v2 and so on up to the ith term. This is the ith term. Yi into Vi plus up to so on up to n term. So I can take this term out of the summation sign. So this will be equal to such that the summation sign can be written as k from 1 up to n, and then y ik vk, right? And then k must not be equal to I because we have taken out the ith term. सही है? YII into VI. We have taken out this term. जब आप इस टर्म को बाहर निकालेंगे इस साइन से तो यहाँ पे k must be not be equal to I. So similarly this concept has been applied here. ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊँगा बिकॉज आप इस स्टेज में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो just for time now, just for time being, we have taken out the value of ith voltage. So this comes out to be this formula, right? Should I proceed now? Should I proceed? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, so moving on towards the next slide. So these two terms have been derived from the previous formulas. सही है? This is basically the power of the ith bus, and this is basically the reactive power of the ith bus. सही है? So now moving on towards the application of Gauss-Seidel method. सही है? अभी इस एग्जाम्पल में आप लोगों के पास कोई भी दो बस नेटवर्क है. सही है? There is a two bus network. So this bus is known, which is the slack bus, and this is the unknown bus. So the load of this bus is 1 plus j 0.5, and also there is a shunt admittance of 0.25 j 0.25 attached to this bus, capacitor attached to this bus.
The impedance of transmission line is 0.02 plus J 0.06 per unit, and they are demanding that apply the Gauss-Seidel method to this bus. So moving on towards the application of formula, but before that we need to derive our bus admittance matrix. This bus admittance matrix is basically calculated from this formula. So as I told you that there should be a negative sign with this quantity. So this should be minus 5 plus J15, and this term should also be, there is also a negative sign. So this term should also be minus 5 plus J15. सही है? आप लोग के जहन में कुछ आ रहा है? सही है, Are you getting दोबारा एक्सप्लेन कर दें ये अच्छा। जो है। ऊपर से गुजर रहा है सर। अच्छा, चलो मैं थोड़ा स्लो पेज में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल है, सर सही है? दोबारा एक्सप्लेन करते, नहीं समझ आ रही। अच्छा, मैं कर देता हूँ। दिस बस बार इज नोन, देयर इज जनरेटर, ये बस बार नंबर 1 है, ये बस बार नंबर 2 है, सही है? इस बस बार के साथ एक कैपेसिटर अटैच है J0.25 का, सही है? और इसकी लोड की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस J0.5, सही है? इस ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पीडेंस है वो है 0.02 प्लस J0.06 पर यूनिट, सही है? अब इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं दे आर रिक्वायरिंग टू अप्लाई द Gauss-Seidel मेथड टू दिस बस बार, बाय अप्लाइंग द Gauss-Seidel मेथड डिराइव द वैल्यू ऑफ V2, सही है? तो इस केस में क्या किया है उन्होंने कि सबसे पहले वाई बस कैलकुलेट किया हुआ है, सही है? अब इस नेटवर्क, अच्छा, अब इस नेटवर्क का जो वाई बस है वो इस तरह कैलकुलेट होगा कि ये चूँकि 2 बस बार नेटवर्क है ना, तो इसका जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स है वो 2x2 होगा, सही है? तो उस केस में क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा, जो ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पीडेंस है, I will take the reciprocal of that value. So what happens that there is a negative sign here and here, सही है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो आप नेगेटिव साइन डायगोनल में नहीं होना चाहिए था। नहीं, बेसिकली जो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, बेसिकली लास्ट टाइम जिस तरह, अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स या वाई बस होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है? बेसिकली Y11, Y12, सही है, Y21 एंड Y22, सही है? अब इन एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे माइनस साइन मौजूद है बाय डिफ़ॉल्ट, सही है? तो आपके पास जो लेट सपोज यहाँ पे जो z की वैल्यू होगी तो इससे आपके पास यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा ना, 1/z यहाँ पे j टर्म होगा, तो जब आप आयोटा या कम्प्लेक्स क्वांटिटी को रेसिप्रोकल लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? माइनस साइन आता है, सही है? तो ये दोनों नेगेटिव साइन, दीज टू विल गेट कैंसल्ड इन द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। अभी समझ आ रहा है ना? अच्छा, तो इस सर केस जरूरी में तो नहीं है cancel कि हो हर जगह पे ये नेगेटिव, ये जो हमारे साथ इम्पिडेंसेस है। हाँ, यस, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि आपके पास जो इम्पिडेंस होता है वो पॉजिटिव होते हैं मोस्ट केसेस, चूँकि आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उनमें यूजुअली आर और XL के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में, सही है? तो यहाँ पे XC को हम नेग्लेक्ट करते हैं, सही है? तो जब XC नेग्लेक्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टेंस होगी, सही है? तो यहाँ पे ये दोनों साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सही है? अभी जब मैं इसको
लूँगा तो यहाँ पे इसका जो अपना माइनस साइन नहीं है यहाँ पे, उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे उसकी जो ओरिजिनल जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी कंफ्यूजन दूर हो गई। शुड आई प्रोसीड? यस सर। Okay, so let's moving on towards the Gauss Seidel method. अच्छा, अब इन्होंने क्या किया हुआ है बेसिकली कि यहाँ पे y बस कैलकुलेट किया हुआ है इस नेटवर्क के लिए, ये जो आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है। सही है, तो द y बस इज़ दिस। अभी इन्होंने क्या किया हुआ है कि वही गॉस सीडेल वाला फार्मूला है जो आपने यहाँ पे डिराइव किया हुआ था, सेम टू सेम है ना यहाँ पे। सही है, बट दे हैव टेकन आउट द सेकंड i इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें बस बार नंबर 2 की वैल्यू अननोन है। सही है, सो i मस्ट बी इक्वल टू 2। सही है, अभी इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे 1/y22 y22 यहाँ से लिया हुआ है। सही है, दिस इज़ बेसिकली y22, और उसके बाद s2 कंजुगेट डिवाइड बाई v2 कंजुगेट, सिंस v2 इज़ अननोन। सही है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि v2 को आप उसी तरह छोड़ेंगे जिस तरह लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। सही है, सो दिस देयर इज़ y के इंटू वी के। अभी ये जाएगा के फ्रॉम 1 अप टू n। इसमें टोटल नंबर ऑफ बसेस कितने हैं जी? 2 है सर। 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि के कहाँ तक जाएगा? के फ्रॉम 1 अप टू 2 जाएगा। सही है ना, इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे v1 की वैल्यू आ जाएगी। सही है, फिर उसके बाद v2 की वैल्यू आ जाएगी। सही है, y1 2 y22 इंटू v2। सही है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इन्होंने ये जो चीज़ें की हुई है ना 0 1 2 3 4, आपको नज़र आ रहा है ना ये 1 2 0 1 2 3 4, दीज आर बेसिकली आवर आइट्रेशंस। जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया हुआ था ना कि हमने इनको कितने लूप में कितने आइट्रेशन लगाए हुए थे, हमने एक लूप में 10 आइट्रेशन लगाए हुए थे। सही है ना, जिस तरह हमने लास्ट टाइम वो कोड लिखा था। लेट मी शो द कोड, ये वाला जो कोड था ना। सही है, इसमें हमने m की जो वैल्यू थी वो 1 से लेके कितनी रखी थी? 10 तक। 10 मीन्स देयर शुड बी 10 आइट्रेशंस, और ये जो वैल्यू थी ये किस आइट्रेशन में कन्वर्ज हो रही थी? कैन एनीबॉडी रिकॉल दैट? I think that was in the 4th iteration. So यहाँ पे किस आइट्रेशन में वैल्यू कन्वर्ज हो रही है? यहाँ पे इन दी सेकेंड आइट्रेशन। सही है, सेकेंड आइट्रेशन में आपकी जो वैल्यू है वो कन्वर्ज हो रही है, एंड दिस इज़ योर फ्लैट स्टार्ट। फ्लैट स्टार्ट मीन दिस इज़ योर इनिशियल कंडीशन। सही है, तो फिर उसके बाद इन्होंने v2 की वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया? पोलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में। सही है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि s1 की वैल्यू फाइंड आउट की। सही है, इसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला है s1, अगर मैं i की जगह 1 पुट करूँगा तो यहाँ भी 1 1 आ जाएगा। सही है, v1 इंटू i1। तो फिर उन्होंने क्या किया कि v2 की s1 की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर p1 की और q1 की। सही है, अच्छा, अभी फ़िलहाल हम इसके थ्योरी में थोड़े बहुत एडवांटेजेस की तरफ जाएंगे। सही है, तो गॉस सीडेल के एडवांटेजेस ये है कि ये इसमें जो कंप्यूटेशनल जो टाइम है वो क्या है? लेस है
कंप्यूटेशनल टाइम पर आइट्रेशन वो लेस है, तो इसमें जो नंबर ऑफ आइट्रेशन होंगे वो बहुत ज़्यादा हैं। सही है, समझ आ रही है आपको? अभी अगर मेरे पास यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं, वन इज़ गॉस सीडल एंड अनदर वन इज़ न्यूटन रॉप्सन। सही है। अब गॉस सीडल में मैंने आपको बताया कि इसमें कंप्यूटेशनल टाइम पर आइट्रेशन क्या होता है। अब जब एक आइट्रेशन करते हैं तो उस पर टाइम कम लगता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस है वो ज़्यादा होते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस है वो कम होते हैं। सही है। ये स्टेटमेंट आप फिलहाल अपने साथ नोट करें, इसको 5-10 मिनट के बाद मैं वेरीफाई कर दूंगा बाय यूजिंग दी पावरवॉल सिमुलेटर। सही है। तो यहाँ पे न्यूटन रॉप्सन में जो आइट्रेशंस होते हैं वो कितने होंगे? लार्ज नंबर ऑफ आइट्रेशंस। गॉस सीडल में कितने होंगे? एनीबॉडी? हेलो, यस सर। मैं ये कह रहा था कि गॉस सीडल में नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे? ज्यादा होंगे सर। अच्छा, तो जब आइट्रेशन ज़्यादा होते हैं तो जो इसका जो कंप्यूटेशनल टाइम पर आइट्रेशन वो कम होगा। इसमें नंबर ऑफ जो कंप्यूटेशनल टाइम इसका लार्ज होगा, लेकिन इसमें जो आइट्रेशन होंगे वो स्मॉल होंगे, लेस नंबर ऑफ आइट्रेशन होंगे इसमें। सही है। इसमें चूँकि कंप्यूटेशनल टाइम पर आइट्रेशन जो है तो वो स्मॉल होगा, सही है, लेस होगा। इसमें जो आइट्रेशन होंगे, सही है, वो क्या होंगे? इसमें आइट्रेशन लार्ज होंगे। सही है। अच्छा, अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स द पावरवॉल सिमुलेटर। सही है। जी, आपको विंडो नज़र आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रहा है? दिस इज़ बेसिकली यूर टास्क नंबर 1। अभी आप सारे के सारे मैनुअल खोलें, अपने मैनुअल्स एक साइड पे खोल। सही है। तो यहाँ पे टास्क नंबर 1 में कितने बस बार हैं? मोइज़, टास्क नंबर 1 में कितने बस बार हैं? हेलो मोइज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर रिपीट कर दें, क्या कह रहे हैं? टास्क नंबर 1 जो है, लैब टास्क नंबर 1, लैब नंबर 5 के अंदर, उसमें कितने बस बार हैं? आप ज़रा मैनुअल चेक करें, मैनुअल खोल के मुझे बताएं। 3 बस बार है ना उसमें? यस सर, 3 है। अच्छा, इसमें स्लैक बस कौन सा है? बस नंबर 1 है। सही है। जो स्लैक बस है वो आपका नॉन बस है। जो बाकी 2 बसेस हैं तो वो बेसिकली उन्होंने 1 + j 0 लिखा हुआ है, बट दिस इज़ यूर इनिशियल कंडीशन। जब भी आप पावरवॉल सिमुलेटर में जब भी आप किसी चीज़ को जो कोई अननोन बस होता है उसको आप 1 ∠0 से इनिशिएट करते हैं। सही है। देयर आर ट्रांसमिशन लाइंस सर एंड 3 देयर इज बस वन हैं। डॉट। यस यस। अच्छा, तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनकी इम्पीडेंस जो अकॉर्डिंग है वो मैंने लिखी हुई है। सही है। जो इस ट्रांसमिशन लाइन की जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो 0.02 और 0.04 है। सही है। नज़र आ रहा है सारों को? सर ये तीनों बसेस की हम लोग 1 ∠0 लेते हैं। यस, इनिशियली चूँकि हम ये करते हैं ना कि हमारे पास जो अननोन बसेस होते हैं ना, बस 2 एंड बस 3 इज़ अननोन, मींस आपके पास इनके मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि आप इसको 1 और 0 से इनिशियलाइज करते हैं।
सही है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, सही है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रन मोड में करूँगा, सही है, रीसेट टू फ्लैट स्टार्ट। अभी इसमें आप नंबर ऑफ इटरेशंस किस तरह सेट करते हैं, तो आप यहाँ पे सिमुलेटर ऑप्शंस नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे टूल्स के अंदर सिमुलेटर ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पे मेंशन है MVA कन्वर्जेंस टॉलरेंस, कितनी है MVA कन्वर्जेंस टॉलरेंस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है, कोई बता 0.1 सकते? 0.1, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन वो 50 है बेसिकली, सही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 50 है। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने इसके आइट्रेशंस को 10 सेट कर दिया अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो अंडर 10 आइट्रेशन वो कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही है। तो मैं नंबर ऑफ आइट्रेशंस यहाँ से लास्ट टाइम जिस तरह आपने m की वैल्यू मैटलैब के अंदर लूप के अंदर सेट की हुई थी ना, m को आपने रेंज दिया हुआ था फ्रॉम 1 अप टू सो ऑन, जितने नंबर ऑफ आइट्रेशन आप ले रहे थे। सो दिस इज बेसिकली द, अच्छा ये एक स्टूडेंट है, इसको कौन बार बार रिमूव कर रहा है? अच्छा एनी हाउ लेट मी चेक द स्टूडेंट, इसका अच्छा एनी हाउ, तो इस केस में क्या है कि आप नंबर ऑफ जो आइट्रेशंस हैं उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, सही है। अगर आपका सिस्टम 10 आइट्रेशन या 20 के अंदर अभी कन्वर्ज नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं नंबर ऑफ आइट्रेशन को बढ़ाऊँगा या कम करूँगा? मोइज़ आपका क्या ख्याल है? सर इंक्रीज करेंगे, सही कह रहे हैं यस सर। डेफिनेटली जब मेरे पास कम नंबर ऑफ आइट्रेशन में सिस्टम कन्वर्ज नहीं हो रहा, मीन वैल्यू कन्वर्ज नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा कि मैं नंबर ऑफ आइट्रेशंस को बढ़ाऊँगा बाय यूजिंग दी, आप उसे क्या कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैं पहले 20 आइट्रेशन रखूँगा, अगर 20 के अंदर कन्वर्ज ना हुआ तो क्या करूँगा, 30 करूँगा, अगर 30 के अंदर भी कन्वर्ज ना हुआ तो 40 करूँगा, अप टू सो ऑन। लेट्स चेक इफ द सिस्टम इज कन्वर्जिंग विद इन द 10 आइट्रेशन, सो आई एम टिकिंग ओके, सही है। Now here is a option called log. So log is basically used to see the values of iteration. तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करूँगा, क्लियर विंडो, सही है। अभी मैं यहाँ से मेथड को सेलेक्ट करूँगा, सही है। इसमें कितने मेथड्स हैं, कोई मुझे बता सकता है? इसमें सिंगल सोल्यूशन है फुल न्यूटन, और फिर उसमें सिंगल सोल्यूशन फास्ट डिकपल्ड, सही है। फिर उसके बाद पोलर न्यूटन राप्सन, इस आज के जो मेथड है उसमें ये दोनों मेथड हम करेंगे, गॉस सीडल पावर फ्लो एंड पोलर न्यूटन राप्सन पावर फ्लो, सही है। तो सबसे पहले मैं इस सिस्टम को सॉल्व करना चाहता हूँ बाय यूजिंग द गॉस सीडल मेथड। सो लेट्स सी, अभी यहाँ पे आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, नंबर 0 1 2 अप टू 8। यहाँ पे आपके जो सिस्टम है वो रुक गया है 8 आइट्रेशन पे। व्हाट डज इट मीन्स? मोइज़ या कोई और स्टूडेंट बता सकता है कि ये आपका जो पावर वॉल सिमुलेटर है ये 8वीं आइट्रेशन पे क्यों रुक गया? वाई इन द 8th आइट्रेशन? ठीक है सर, वहां जाके कन्वर्ट कन्वर्ज हो गया। यस, द सिस्टम हैज़ बीन कन्वर्ज्ड, सही है। अगर मैं इनकी जो वोल्टेजेस है, बस वोल्टेजेस, नाउ दीज हैव बीन सॉल्व्ड, ये जो इनके सोल्यूशन है, सही है।
अभी पावरवॉल सिमुलेटर ने मुझे बताया कि इसके जो V2 है और V3 है उसके डेटा क्या है. So this is the V2 magnitude, this is the V2 angle, this is the V3 magnitude and V3 angle. सही है. तो यहाँ पे मेरे पास ये दिस गॉस सीडल मेथड में कितने आइट्रेशन पे कन्वर्ज हो गया इन दी 8th आइट्रेशन. अभी मैं इसको दोबारा क्लियर करूँगा विंडो को ताकि मैं दूसरे मेथड से इसको सॉल्व कर सकूँ न्यूटन रॉप्सन मेथड से. अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया कि न्यूटन रॉप्सन मेथड में आइट्रेशंस गॉस सीडल की बनिस्बत कितने होंगे, कम होंगे. सही है ना. नहीं, आइट्रेशंस कम होंगे और जो कंप्यूटेशन टाइम है पर आइट्रेशन वो ज़्यादा होगा. सही है न्यूटन रॉप्सन मेथड. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रीसेट करूँगा. रीसेट टू प्लेट स्टार्ट. अभी ये प्लेट स्टार्ट का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है. रीसेट टू प्लेट स्टार्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग रीसेट टू प्लेट स्टार्ट. इनिशियल कंडीशंस पे वापस आ जाए. Yes, the system is restored to initial condition by using this command reset to plate start. अभी मैं इस सिस्टम को किस मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ, पोलर न्यूटन रॉप्सन और पोलर NR पावर फ्लो मेथड. तो मैं इसको क्लिक करूँगा. सही है. अभी ये किस आइट्रेशन पे जाके कन्वर्ज हो गया, 3rd आइट्रेशन पे. तो इट मीन्स आपके पास सेम सिस्टम है और सेम पैरामीटर्स है. लेकिन जब मैंने इस सिस्टम को गॉस सीडल मेथड से सॉल्व किया तो उसमें कितने आइट्रेशंस आ रहे थे, 8 आ रहे थे. 8 आ रहे थे. गुड. और इस केस में कितने आ रहे हैं, 3 आइट्रेशंस आ रहे हैं. सही है. So hence it is verified that the number of iterations in the Newton-Raphson or NR power flow method is less than the number of iterations in the Gauss-Seidel method. अभी आप लोगों का काम क्या है बेसिकली. इस टास्क में अगर मैं आपको मैनुअल दिखा दूँ तो अच्छा, टास्क नंबर 1 है. इसको लेट सपोज आपने परफॉर्म कर लिया तो सबसे पहले आप इसका वाई बस फाइंड आउट करेंगे. सही है. तो वाई बस को आप सबसे पहले मैनुअली फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको पावरवॉल सिमुलेटर के साथ कंपेयर कर लेंगे. सही है. सेकंड आपने क्या करना है कि सबसे पहले सिस्टम को सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस सीडल मेथड. तो जो आइट्रेशंस आपके पास यहाँ पे आ रही है ना उस विंडो के अंदर, तो जो आइट्रेशंस आपके पास यहाँ पे आ रही है ना, तो आपने वही आइट्रेशन उसके अंदर लिखनी है. लेट सपोज मैं इसको दोबारा गॉस सीडल से सॉल्व करता हूँ. सो आई विल रीसेट माय सिस्टम टू प्लेट स्टार्ट, देन आई विल सॉल्व माय सिस्टम बाय यूजिंग द गॉस सीडल मेथड. अब ये जो आइट्रेशंस है ना, P और Q की वैल्यूज़ हर एक आइट्रेशन के बाद, ये आपने कहाँ पे नोट डाउन करनी है, मैनुअल के अंदर नोट डाउन करनी है. सही है ना. यहाँ पे ये जो आइट्रेशंस है ना आपने यहाँ पे नोट डाउन करने हैं. फिर आपने अपने सिस्टम को किस मेथड से सॉल्व करना है, NR पावर फ्लो मेथड या न्यूटन रॉप्सन मेथड. सही है. तो जो आइट्रेशंस आपके पास आ रही है आपने उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है. सही है. अभी पार्ट नंबर D में ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स. इस केस में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि न्यूटन रॉप्सन मेथड में आइट्रेशंस कितने होते हैं, आइट्रेशंस कम होती हैं. हाँ. और कंप्यूटेशन टाइम कितना होता है पर आइट्रेशन, ज़्यादा होता है न्यूटन हाँ. में. और गॉस सीडल में आइट्रेशन ज़्यादा होती है और लेकिन कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन टाइम पर आइट्रेशन वो क्या होता है, कम होता है. तो ये दो जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपने अपने जहन में इस तरह बिठाने हैं ना, ये दो पॉइंट्स आपसे कभी भी ना भूल जाएं, क्योंकि आई कैन आस्क दीज थिंग्स इन वाइवा. सही है. तो इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है. अभी है पार्ट नंबर E, प्लॉट द पावर मिसमैचेस. सो व्हाट इज मीन बाय द
पावर मिसमैच। अच्छा, इसका मतलब ये है ना कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही थी ना पावर की, उन दोनों में मिसमैच कितना है, मींस आइट्रेशन के बाद इसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँच रही है पी और क्यू की, और जो आपका जो न्यूटन रैप्सन मेथड है उसमें आइट्रेशन के बाद वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है। सो दिस इज़ बेसिकली meant by the power mismatch, सही है। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज दैट कंपेयर द कन्वर्जन रेट्स। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि कन्वर्जन रेट आप किस तरह डिफाइन करते हैं, सही है। तो कन्वर्जन रेट आप इस तरह डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज न्यूटन रैप्सन मेथड में 3 आइट्रेशन के बाद सिस्टम कन्वर्ज हो गया, और गॉस सीडल में कितने आइट्रेशंस थे? 8 सर। 8। इसका मतलब ये है कि न्यूटन रैप्सन का जो कन्वर्जन रेट है वो क्या है? 3। फास्ट नहीं, वो तो है 3 तो है, लेकिन इसका कन्वर्जन रेट क्या है? फास्ट है। फास्ट इसलिए क्योंकि ये जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी आपके पास 2 गाड़ियां हैं, लेट सपोज एक गाड़ी आपको 1 घंटे में पहुंचाती है अपने डेस्टिनेशन पे, और दूसरी गाड़ी है उसमें थोड़ा इंजन मतलब ठीक नहीं है तो वो आपको 1.5 घंटे में पहुंचाता है। तो इन दोनों में जो फास्ट जो गाड़ी है वो कौन सी है, जो आपको 1 घंटे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है ना। जी। इनका जो कन्वर्जन रेट है न्यूटन रैप्सन का वो क्या है? तेज है ज़्यादा। फास्ट है। और जो गॉस सीडल का जो कन्वर्जेंस है वो क्या है? स्लो, एज कंपेयर टू न्यूटन रैप्सन, सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टास्क नंबर 1, सही है। अभी आते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। सो टास्क नंबर 2 में आप क्या करेंगे कि इसी सिस्टम को, सेम सिस्टम है, सही है, इसी को आपने क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा बाय यूजिंग द पावर वर्ल्ड सिमुलेटर, सही है। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ पे जो J0.1 है ना, ये असल में J0 है, ये अपने साथ नोट करें, सही है। तो आपका जो ये वाला जो बस है ना, दिस इज़ यूर स्लैक बस, इसका जो मैग्नीट्यूड और जो एंगल है वो 1+J0 नोन है। इन दोनों का अननोन है, तो उसको आप इनिशियलाइज किससे करेंगे? 1 और 0 से। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और एंगल 0 होगा। इसके जो इनिशियल जो कंडीशन है ना इन दो बसेस के, वो क्या करेंगे आप? वो 1 विद एंगल 0 करेंगे। तो लेट्स ड्रा आवर सिस्टम, सही है। इसको करते हैं, अच्छा इस केस में क्या होगा कि आपके पास कितने बस बार हैं? अपने मैनुअल को ज़रा देखें, सही है, 3 बस बार है, सही है। दिस इज़ बेसिकली बस नंबर 2 एंड दिस इज़ योर स्लैक बस, सही है। और इसके बाद यहाँ पे बस नंबर 1 है जो कि लोड बस है, सही है। तो नाउ मूविंग on towards the bus number 3 which is the mixed bus. Mixed bus means it is having both the generator and the load, सही है। यहाँ पे इसमें 3 बस बार आपके पास पूरे हो गए, सही है। फिर हमने क्या करना है कि इसको 2 जनरेटर ऐड करने हैं, सही है। इसका जो जनरेटर है वो इस केस में क्या होगा? 50 मेगावाट का जनरेटर है और 0 मेगावाट का, सही है। और इसको यहाँ पे, सही है। और इसके साथ जो जनरेटर अटैच है उसकी रेटिंग कितनी है? G2 की रेटिंग कितनी है? 300 मेगावाट और 0 मेगावाट, सही है। सारों को समझ में आ रहे हैं ना? अच्छा, उसके बाद हमने क्या अटैच करना है इसके साथ? नॉइज़
ये लोड कितना है? सर देख के बताता हूँ। ओके, देख के बेशक बता दे मुझे, अपने मैनुअल से ज़रा चेक करें ये लोड कितना है। टू 200 मेगावाट का है 200 वो। मेगावाट और 100 मेगावाट। ओके गुड। जो इस सिस्टम को हमने, वेट ए मिनट, तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स ऐड द ट्रांसमिशन लाइंस। अभी इस केस में 3 ट्रांसमिशन लाइंस हैं यहाँ पे, तो इसकी रेटिंग कितनी है? इसकी 0.02 और 0.08, तो 0.08 और 0.02 सही है पर यूनिट। फिलहाल हम इस MVA रेटिंग को स्किप करते हैं क्योंकि हमें वी आर नॉट गिवन दी MVA रेटिंग, सो वी आर नॉट कंसर्न विद दी MVA rating for time being. We are only concerned with our power flow methods. So let's connect another 2 transmission lines. So let's skip the MVA rating again, and here is another transmission line of the same R and X value. So our system is complete, right? इसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है ना? सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। नाउ रन आवर सिस्टम बाय यूजिंग, सबसे पहले मैं एट्रेशंस को सेट करूँगा। एट्रेशंस चलें 15 रख लेते हैं फ़िलहाल, सही है। नंबर ऑफ एट्रेशंस इज़ 15 एंड देन गो टू लॉग, सही है, क्लियर विंडो, and then let's solve the system by using the Gauss-Seidel method. So the system is being iterated in how many iterations? System कितने iteration पे converge हो रहा है? Yes, 7 iterations में, सही है ना? Moiz, are you there? As well as the remaining students. Don't get sleep, okay? लैब के दौरान वैसे ना हो कि आपने लैपटॉप खोले हुए हैं और उधर आप सोए हुए पड़े हुए हैं, सही है? तो इस तरह नहीं करना है। अगर आप लैब को अटेंड ही करना है तो बी रिमेन अटेंटिव, सही है। अच्छा, यहाँ पे कितने एट्रेशन पे ये सिस्टम कन्वर्ज हो रहा है? 7 में सर। 7 में हो रहा है। अगर मैं इस सिस्टम को, लेट्स क्लियर द विंडो, रीसेट द सिस्टम टू फ्लैट वैल्यूज, अगेन सॉल्व द सिस्टम बाय यूजिंग द न्यूटन-रॉप्सन। इस केस में अगेन देयर आर 3 एट्रेशंस, तो आपका जो न्यूटन-रॉप्सन मेथड है वो दिस इज़ ए फास्ट कन्वर्जिंग मेथड, सही है। तो चलिए जी, लैब टास्क नंबर 2 भी मैंने आपको करा दिया और इसको आपने घर में दोबारा करना है, लैब टास्क नंबर 1, 2 और 3 को, सही है। तो आपके ये जो 3 लैब टास्क है ना, आपने इसकी रिपोर्ट बनानी है, सही है, इस लैब टास्क को भी। अच्छा, इसमें जो ये जो 2 ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं ना, इस केस में फ़िलहाल आप इनको आइडियल कंसिडर करें, सही है। यहाँ पे बल्कि 3 ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, ये भी है ना, सही है, 3 ट्रांसफार्मर्स, यू आर हैविंग 3 ट्रांसफार्मर्स इन योर सिस्टम। तो आपने क्या करना है कि आपने इन तीनों ट्रांसफार्मर को आइडियल लेना है, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको एग्जैक्ट उसी तरह लेना है, सही है। और ये जो कैपेसिटर है ना, उसको आप बेशक 10 मेगावाट का लगा दें, सही है, 10 मेगावाट कैपेसिटर लगा दें, सही है। तो आपने ये जो 3 लैब टास्क हैं ना, इनको परफॉर्म करना है, सही है, प्रॉपरली। और ये जो आपका जो रिक्वायर्ड जो क्वेश्चंस है ना, इनको फिलअप करने हैं, सही है। आई हैव ऑलरेडी सेंड यू दी वर्ड फॉर्मेट ऑफ दी मैनुअल, सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मैनुअल पड़ा हुआ है, तो उसमें आपने फिलअप करने हैं
और इसके आखिर में स्क्रीनशॉट्स अटैच करने हैं अपने पावरवॉल सिमुलेटर सिमुलेशंस के। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट्स किस चीज़ के सर? ये एक तो ये डायग्राम के बेशक अटैच कर दें। ये जो पावरवॉल सिमुलेटर में आप जो भी चीज़ें जो सिमुलेट कर दें ना, लेट जी। सपोज आपने ये सिस्टम सिमुलेट किया तो इसके साथ अपने फील्ड वैल्यू अटैच कर दें। सही है, हर एक सही। बस के साथ। लेट सपोज मैं इस बस के साथ बस वोल्टेज अटैच करता हूँ। सही है, और बस एंगल। सही है, तो आपने क्या करना है कि आपने हर एक बस के साथ अपने फील्ड वैल्यूज़ अटैच करनी है। सही है, अच्छा। तो इसी तरह आपने हर एक चीज़ के साथ अपने जो एंगल और मैग्नीट्यूड है उसको अटैच करना है बाय यूजिंग दी फील्ड। मैंने आपको मेथड अभी सिखा दिया, लास्ट टाइम भी सिखाया हुआ था, लेकिन अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली उसको सिखा दिया। सही है, किस तरह आपने इसको हर एक बस के साथ अपने उसके फील्ड वैल्यूज़ को अटैच करना है। सही है, तो ये रहे आपके तीनों टास्क। एनी कंफ्यूजन? जी, No, sir. आई होप को कि आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मेथड्स हैं। यस सर। बाकी भी मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सही है, लेकिन आप सबसे पहले जब भी आप इसको थ्योरी में पढ़ लेना इंशाल्लाह, तो मैं फिर आपको सारे के सारे मेथड सिखाऊंगा पावरवॉल सिमुलेटर में 1 बाय 1। सही है, सर जो वर्ड तो फाइल भेजी हुई है आपने, जो आपने भेजी हुई है ये लैब 5 की, उसी में ही एडिट करके हम स्क्रीनशॉट्स ऐड कर लेना इसके सिमुलेशन के। बिल्कुल बिल्कुल उसी में एडिट कर ले, लेकिन इसके जो आंसर्स हैं ना वो अपने प्रॉपर लिखने हैं। आंसर ठीक को है, आपने स्क्रीनशॉट अटैच नहीं करने। लेट वो सपोज तो इसमें जो आइट्रेशंस है ना, तो आपने हर एक आइट्रेशन की वैल्यू को लिखना है। मतलब टाइप करना है हर एक आइट्रेशन की वैल्यू को। लेट सपोज आपके पास आइट्रेशन 1 के बाद पी और क्यू की वैल्यू क्या है, आइट्रेशन नंबर 2 के बाद पी और क्यू की वैल्यू क्या है, लास्ट आइट्रेशन के बाद वैल्यू क्या है। सही है, और जो वोल्टेज और जो एंगल है उसके भी जो फील्ड वैल्यूज़ है वो अटैच करने हैं, मतलब स्क्रीनशॉट के अंदर। सही है, so I hope that you really enjoyed your today's lab, so let's stop the recording. Yes, sir. सर